रवा रखा गया उन कारकुनों की जानिब से तहरीक इंसाफ की, उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए। वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर मैं समझता हूं कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कैपिटली हाइब्रिड निजाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है ऑपोजिशन का करने का, ऐसे लग रहा था कि आपको ऑपोजिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हर दरवाजे बंद होते जा रहे थे, मीडिया पे पाबंदियां, अदालतें पे मजबूरियां, और जिस तरीके से सियासी इंतकाम का एक नया प्रेसिडेंट डाला गया, ना सिर्फ सियासी जमातों के क़ियादत पे, उन जमातों के मेंबरान असेंबली पे, मगर उन जमातों के मेंबरान असेंबली के खानदान पे, उन जमातों के मेंबरान असेंबली के घर के औरतों पे भी इस फैशिस्ट रजीम ने हर प्रेसिडेंट तोड़ा था। एक इंप्रेशन डाला था कि हम यहां हैं, हम सेम पेज पे हैं, और हम यहां 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए भी नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और आप जो जमहूरियत का ख्वाब देख रहे हो, जो पार्लिमानी जमहूरियत का सफर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख आपने बनाया था, जब पाकिस्तान में पहली बार एक सिविलियन हुकूमत ने ना सिर्फ अपना हुकूमत मुकम्मल कर लिया, मगर एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। और हमने जो ये नया सफर शुरू किया था, ऐसे लग रहा था कि अब हमारा ये सफर जो है, ये ट्रांजिशन जो है, was no longer a transition towards democracy. It was a transition towards, it was a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement का ये सियासी कार्ड खेल के, we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And अगर किसी को शक है कि कौन कल जीत गया, कौन हार चुका है, तो आज वो टेलीविजन स्क्रीन्स पे जो देख रहे हैं, उनके सामने 2 पिक्चर्स आ रही हैं। They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum.
They are seeing us celebrate a democratic victory, a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight. The end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. یہ آپ کا ایک سینٹ کا سیٹ نے اس پورا نظام کو بے نقاب کر دیا ہے، ان سارے کٹ پتلیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. آپ نے ایک سینٹ کا الیکشن لڑ کے مل کے نیشنل اسمبلی کے جو وزیر اعظم کا ووٹ بھی لیتے ہیں، وہاں سے الیکشن جیت کے یہ دکھا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ ہمیں اب ایک کیمپین پہ نکلنا پڑے گا، عوام کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، میڈیا میں ایک بیانیہ کھڑا کرنے کے لیے کہ ہم نے نو کانفیڈنس کر دیا، ہم نے دکھا دیا کہ عمران خان has lost the confidence of his National Assembly. اب کو وہ بھی نہیں کرنا پڑا. اب تو صدر پاکستان نے بھی مان لیا ہے، صدر پاکستان نے خود مان لیا ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی میجورٹی کھو بیٹھا ہے. ثابت کر لو. اب اس نے کیا ثابت کر لیا؟ آپ اپنا پارٹی کا جلوس پارلیمان کے اندر بلا کے یہ نہیں ثابت کرتے ہو کہ آپ کے پاس پارلیمانی میجورٹی ہے. جیسے کل ہمیں پتا تھا کہ آپ کے پاس نہ پارلیمان میں سپورٹ ہے، نہ عوام میں سپورٹ ہے. ہمیں آج بھی پتا ہے کہ نہ پارلیمان میں آپ کا سپورٹ ہے، نہ عوام میں آپ کے سپورٹ ہے. اور اب جیسے ہم نے پہلے پریس کانفرنسز میں کہا کہ اب اس قسم کے فیصلے وزیر اعظم عمران خان نہیں لے گا. اب یہ فیصلے کہ کب عدم اعتماد ہوگا، کہاں اور کس کے خلاف عدم اعتماد ہوگا، یہ فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کریں گے. اس ملک کے نمائندے جماعتیں کریں گے. ہم مل بیٹھ کے فیصلہ اور اسٹریٹجی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے خان صاحب کہ آپ کب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ کا اسپیکر کب تک اس کرسی پر بیٹھا ہے، آپ کے کٹ پتلی وزیر اعلی کب تک اپنی کرسی سنبھال رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اسی یونٹی کے ساتھ مل کے محنت کریں گے، اس قسم کے سیاسی فیصلے لیں گے اور سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ مل بیٹھ کے جب مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور صدر آصف زرداری پلان بناتے ہیں تو یہ کٹ پتلی تو فارغ ہی ہوتے ہیں، ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے ایک شارٹ ٹائم میں اپنے جمہوری فیصلے لے کے، بیکاز اتنا مایوسی تھا اس نظام کے خلاف، اتنا مایوسی تھا اس سسٹم کے خلاف کہ جمہوری جماعتیں بھی اس پروسیس سے الگ ہونا چاہتے تھے. اور میں بلیم کسی کو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے the highest forum of Pakistan is degraded and debased on a daily basis, وہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے. ہم
समझते हैं कि जितने भी कम स्पेस होगा, मानते भी है कि बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन इस नालायक नाअहल कठपुतली को एक्सपोज करने के लिए इतना भी स्पेस काफी है। और जब आपने मिलके फैसला किया कि आप बाय इलेक्शंस लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, इनका मुकाबला 4 सूबे में करेंगे, तो फिर आपने उनको एक्सपोज कर दिया कि हर सूबा पीडीएम के पास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इस्लामाबाद में खिताब कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद की है। उनकी गुफ्तगू इस वक्त जारी है। आपको कुछ देर में उनकी गुफ्तगू दोबारा दिखाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी से मुतालिक उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से पीडीएम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने बेनकाब कर दिया कि ये फाशिस्ट कठपुतली हुकूमत कितनी कमजोर है और अब ऑपोजिशन जमातों की जो मनसूबाबंदी है उसके आगे ये हुकूमत ठहर नहीं सकेगी क्योंकि ये कठपुतली हुकूमत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऑपोजिशन अब ये तय करेगी कि स्पीकर कब तक कुर्सी पर बैठते हैं। कि इस परेशानी में जो खान साहब की हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत रवैया अपना रहा है, ये पूरा निजाम के लिए एक खतरा है। जो आज पार्लिमानी असेंबली में, पार्लिमान के लॉजेस में मेंबरान पार्लिमान के साथ हुआ था, खास तौर पे हमारे जो खातून मेंबरान पार्लिमान हैं, ये मैं जितना भी सख्त, और हमें सब सियासतदान होते हुए ये समझना चाहिए कि हम इस सिलसिला को, इस प्रेसिडेंट को, इसमें हम ज्यादा हवा और आग अपने तरफ से नहीं डाल सकते हैं। जो वो है सो तो वो है। हम सब जानते हैं कि ये ना जमहूरी पसंद है, ना सियासतदान है, ये ना पाकिस्तान का जो हमारा सकाफत है, जो हमारा रवायत है, जो हमारा कल्चर है, इनमें तो है नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन, सदर जरदारी के कारकुन, मौलाना फजल रहमान के कारकुन कभी भी इस किस्म का रवायत नहीं अपनाता। और मैं अपना दिल पे हाथ लगा के कह सकता हूं कि हमारे मुखालिफ अगर किसी भी सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ खातून हो, वो जितना बुरा अल्फाज इस्तेमाल करे, वो जो भी करे, मेरा कोई भी कारकुन उनके हाथ नहीं उठाते। और जो आज हुआ है, हम सबको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जॉइंट मजम्मत होना चाहिए। And I am shocked that the Prime Minister of Pakistan, who claims that he is the leader of the House, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands, आपका जिम्मेदारी होता है, जब आप लीडर ऑफ द हाउस हो तो फिर लीडर उस पूरा हाउस के हो जिसमें हम भी मेंबर्स हैं और वो भी मेंबर्स हैं। और कि खान साहब ने इस हमला का ना मजम्मत किया, ना जिक्र किया, it just goes to show कि इमरान खान का वही मेंटालिटी है जो इन थग्स के थे आज पार्लिमान के लॉजेस में। ये इस किस्म के जो मिस्टेक्स है, जब आप जानते हो कि आप हार रहे हो, जब आप जानते हो कि आपकी हुकूमत जा रहा है, तो फिर इस किस्म के गैर सियासी फैसले लिए जाते हैं। खान साहब का जो तरीक़ेकार है, वो इल्जाम लगाना, गाली देना, बुजुर्गों को गाली देना, ये तो उसका रवायत है। लेकिन आप जितना गाली निकाले, जितने फ्रस्ट्रेशन निकाले, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, रोओ पिटो, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीत चुका। आप तो काबिल ही नहीं हो, ये कठपुतली काबिल ही नहीं है कि वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम भी ले नेशनल असेंबली में। इसको तो पता ही नहीं है कि मतलब क्या है उस ओहदा संभालने का। वजीर आजम इमरान खान साहब, आपको तो सीखने चाहिए था गिलानी साहब से। गिलानी साहब तो वजीर आजम साहब कोई 10 साल पहले, लेकिन उस 10 साल की काम की वजह से, इज्जत की वजह से
वजीर आजम का ओहदा जिस तरीके से उसने संभाला था, उसकी वजह से आज भी इस हाउस में हमारा मेजॉरिटी है। अगर आप ये बातें सीखते, पिछले 1-2 साल में आप यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो सियासत है, जो शराफत है, जिस तरीके से वो सबको इज्जत देता है, अगर आप वो काम कर सकते अपने ही मेंबर्स के साथ, तो आज आप इस पोजीशन में नहीं होते। पर आप ये नहीं कर सकते हो। सदर जरदारी का नाम लेना इस कठपुतली का, जब उसको समझ ही नहीं है, पार्लियामान में खड़ा होकर पता नहीं क्या क्या गालियां निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक खान साहब खुद 12.5 years, और अगर हम इंक्लूड करते हैं ये महीने जो खान साहब ने सदर जरदारी साहब को इधर पिंडी में मेहमान रखा था, 13 years अगर खान साहब कर सकते तो करके दिखाए कि 13 years आप पाकिस्तान की जेल में गुजारे और आपके खिलाफ आज तक कोई कन्विक्शन ना हो, बल्कि जो 99 केसेस इस मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट ने उस सदर जरदारी साहब के खिलाफ शुरू किए थे, हर वो केस इन्हीं अदालतों ने माने हैं। इन्हीं अदालतों ने माने हैं कि सदर जरदारी साहब को बाइज्जत बरी किया है। आपके जो जुराइम है, आपके जो जुर्म है, जो आपने किया है, ये पिछले सिर्फ 3 सालों में, उसमें आप बाइज्जत बरी नहीं हो सकते। सदर जरदारी साहब ने तो हर सुबह को हुकूक दिया। ये 18वीं तरमीम क्या है? ये 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 30 साल का जिद्दोजहद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 1973 का आईन को बहाल करना किसी कठपुतली ने नहीं, सदर जरदारी साहब ने करके दिखाया। और आज जिस हक से, जिस वसाइल से आप पख्तूनख्वा के अवाम को महरूम रख रहे हैं, आप सिंध, बलोचिस्तान और हाँ बिल्कुल पंजाब को भी महरूम रख रहे हो, वो हक, वो वसाइल उनका हक इसलिए है कि सदर जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करवाया था, हमारा इत्तेहादियों ने मिलकर पास करवाया था। हम तो ना सिर्फ नस्लों से सियासत कर रहे हैं और शहीद बीबी का और भुट्टो शहीद का आप सबको इल्म है, मगर सदर जरदारी ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान अपना ही सियासी कुर्बानी और अचीवमेंट्स तो हैं ही सही, लेकिन उस तरफ से भी मेरा खानदान अपना वालदा की तरफ से नस्लों से सियासत में है और अपना वालिद की तरफ से भी नस्लों की सियासत से है। और हमारा जो ANP के दोस्त है, अवामी नेशनल पार्टी के दोस्त है, मेरा दादा हाकिम अली जरदारी साहब उस जमात की बुनियादी मेंबर था, सिंध का सदर था। हम सियासत अपने अवाम के लिए करते हैं, हम सियासत इस मुल्क के गरीब के लिए करते हैं, अपने उसूलों के लिए, अपने रवायात के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने कौमों के लिए, हुकूक दिलवाने के लिए, हुकूक हासिल करने के लिए। हम चोर दरवाजों से, जैसे आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं फख्र से कह सकता हूं कि हम कभी भी चोर दरवाजों से उस कुर्सी पे ना बैठे हैं और ना बैठेंगे। हमने सिर्फ एक सेनेट की सीट लड़के हमने पहली बार इस इमरान कठपुतली को शिकस्त दिलवाया था। हमने उस हर आदमी का, हर पाकिस्तानी शहरी का, जिसने इस कठपुतली, इस नालायक वजीर आजम की वजह से पिछले 3 सालों में तकलीफ सहा है, जो मुआशी दहशतगर्दी हमारे अवाम के साथ किया गया है, जो मुआशी कत्ल हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा ताजिर, सब हर किसी के साथ हो रहा है, उसका हिसाब हमने एक जीत के थ्रू लिया है। हर पाकिस्तानी उस दिन इसलिए खुशी मना रहा था, ना सिर्फ कि ये जमहूरियत की जीत है, ना सिर्फ कि हमने सेनेट का एक सीट निकाला है,
मगर इसलिए भी कि वो दो शख्स, एक इमरान खान और उनका उम्मीदवार, जिनकी वजह से ये मोहराशी बहरान चल रहा है, उनको भी आपने शिकस्त दिलवाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसी तरीके से सब मिलके मेहनत करते हैं, एक होके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आगे बढ़ते हैं, हम सियासी लड़ाई का सियासी हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा होगा। और ये कामयाबी ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, सदर आसिफ जरदारी का, या मेंगल साहब का, या मालिक साहब का, या अचकजाई साहब का, ये कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी का कामयाबी होगा जो एक जमहूरी पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप आई रियली वांट कि हम खाना खाना शुरू कर दें, बहुत ही देर से हमारे मेंबरान नेशनल असेंबली इंतजार कर रही हैं। शुक्रिया जी। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू की है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है जहां पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने खिताब किया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी से पीडीएम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। वजीर आजम इमरान खान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पार्लिमानी अक्सरियत खो बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस नाहल कठपुतली हुकूमत को बेनकाब करने के लिए जो कुछ पीडीएम ने किया ये भी बहुत है।